May I coming, sir? Yes, please. Please be seated. May I sit, sir? Thank you, sir. Thank you, sir. So, you are Ram Ratan. Yes, sir. Please introduce yourself to the board. Okay. Good morning, sir. My name is Ram Ratan Meena. I am from Alwar, Rajasthan, and I did my graduation in Electronics and Communication from NIT Kurukshetra in 2019. After graduation, I preparation for various exams like GATE, Engineering Service, and some other exams. Presently, I am working as a scientist in STQC undertaken Ministry of Electronics and IT. Ministry of Electronics and IT, MIT. Mighty. Yes, sir. Okay. So, STQC, what is the full form? Sir, it is basically provided the certifications of Government of India. Standardization. I asked what is Okay, the sir. full form of Okay, sir. STQC? Standardization, testing, and quality and certification. So, when we say standardization, Yes, sir. so in electronics, Yes, sir. if somebody says this is 1 volt current, Okay, sir. what is the standard of saying that this is actually 1 volt? Okay. Sir, it is basically the parameter of measurement of voltage. Yes, so how? भाई मीटर होता है. Yes, sir. मीटर का there is a gauge. Yes, sir. You Yes, can sir. say this gauge, or for milligram, this item kept in this scientific laboratory. They say in NPL they have kept the standard gram. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I am saying for standard volt, Yes, sir. Yes, sir. standard ampere. Okay, sir. Yes, sir. How do you, as a layman, you explain to me what is standard volt, what is standard ampere? How will we measure and prove that this is standard ampere and standard volt? Yes, sir. सर आई डोंट एग्जैक्टली, बट हमारे लैब में ऐसा होता है कि सपोज हमको किसी वोल्टेज का मेजरमेंट करना होता है तो हमारे पास ना प्रिसीजन और एक्यूरेसी के उससे बेटर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो हम उसके थ्रू उसकी वोल्टेज का लाइक उसके 1 वोल्ट है तो 0.999 वोल्ट आ गया, 1 के अप्रोक्सीमेटली आ गया. नहीं, बेटर इक्विपमेंट से आपका क्या मतलब है? सर मतलब जो 1 वोल्ट है उसको हम रीड कर पाते हैं कि वो एग्जैक्टली 1 वोल्ट कितने नियर बाई है मतलब मेजरमेंट वैल्यू के. बट बेटर इक्विपमेंट का आपका मतलब क्या है? मतलब इंपोर्ट किया इक्विपमेंट तो बेटर है. सर उसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग. हाँ, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अकॉर्डिंग. हाँ, उसकी एक्यूरेसी कौन कहता है कि वो एक्यूरेट है? अल्टीमेटली कोई स्टैंडर्ड तो होगा ना. यस दैट इज माय क्वेश्चन. ओके सर. ओके. एनीवे, आप इसको देखिएगा. ओके सर. ओके, सो यू आर फ्रॉम रैनी. यस सर. यस सर. रैनी का क्या मतलब है? सर इट इज़ सर सब डिस्ट्रिक्ट है सर प्रेजेंटली अभी. हाँ, वो ठीक है, पर मतलब क्या है? रैनी का मतलब क्या है? सर आई डोंट नो. बैरर का क्या मतलब है? सॉरी. जो डाकखाना इज बैरर. यस सर. सर इट इज़ द विलेज नेम्स. फिर भी कोई मतलब तो होगा यार, ऐसे थोड़ा होता है. सर आई डोंट नो. नहीं है कोई मतलब. चलिए ठीक है. वॉकिंग ओलंपिक स्पोर्ट है? यस कि नहीं सर. है? सर वॉकिंग. हाँ, सर वॉकिंग नहीं है सर, एथलेटिक्स है, रनिंग. वॉकिंग. है. ओलंपिक में वॉकिंग इज स्पोर्ट. वॉकिंग. रनिंग तो है ही है. यस सर. यस सर. तो जो वॉकिंग वाली स्पोर्ट है उसमें कैसे चेक करते हैं कि ये बंदा वॉक कर रहा है कि रन कर रहा है? अगर वॉक वाले में जैसे 40 किलोमीटर वॉक है, यस सर. यस सर. 20 किलोमीटर वॉक है, उसमें कोई एक्चुअली रनिंग करे ओके. तो हाउ विल यू चेक? थिंक उसमें जो टाइम का जो मेजरमेंट है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके टाइम मेजर करके कोई फास्ट वॉक करने और रनिंग करने में ये तो आप पकड़ नहीं सकते ना. टाइम तो सबका होगा ही. There is a scientific definition. I guess what sir is asking, what is the difference between walking and And running. running, and how we measure that somebody is walking, not running? How will we check कि वो चीटिंग नहीं कर रहा? Yes, sir. Yes, sir. रनिंग शुरू करते हैं वॉकिंग में, हाउ डू वी चेक? आई थिंक स्पीड. नहीं, स्पीड क्या? ओके सर. सर आई डोंट नो. आप इसको चेक करना. ओके सर. ओके आई विल. Anyway, you love badminton. यस सर. What is the size of badminton court? Sir, if single player, then it is 17 feet by 40 feet. If double player, then it is the 20 feet by
44 feet. 20 feet by 44 feet. okay. Okay, and cricket. You love cricket. तो cricket Yes, की sir. pitch का क्या size होता है? Sir, it is the 22 yards length and its width approximately 3.05 meter. Width कितनी? 3.05 meter. अच्छा, तो width मीटर में है और length यार्ड में है. सर वो कन्वर्ट यार्ड. तो ये तो पिच हो गई. अच्छा और ग्राउंड कितना बड़ा होना चाहिए? सर ग्राउंड सर सच ऐसे कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि इतना ही होना चाहिए. कभी कभी आप स्टेज में अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर भी होता है, 90 मीटर भी होता तो है. हम इस होटल की छत पे अगर पिच बिछा लें 22 यार्ड की, यस सर. तो होटल की रूफ कैन बिकम अ ग्राउंड. नहीं सर एक जो पावर प्ले जो होता है कुछ ओवर का, उसमें 30 गज का आई थिंक वो कुछ सर्किल होता है. 30 गज का सर्किल कहाँ से नापते हैं? सर वो पिच से सर्किल सर पिच होता है उसके से नहीं, पिच के किस पॉइंट से नापेंगे? आई थिंक सर्किल मतलब मिड पॉइंट मिड पॉइंट से 30 यार्ड्स का क्या चाहिए सर्किल सर मतलब. मिनिमम? यस सर जो पावर प्ले जो मेंशन होता है. तो जितने में पावर प्ले हो जाए उतना पिच हो गई बस, उतना ग्राउंड हो गया बस. नहीं सर मतलब मिनिमम उतना तो होना ही चाहिए. उसके बाद मतलब 70 मतलब वैसे उसके बाद सच कुछ स्पेसिफिक वो नहीं है, लेंथ नहीं है कि इतना होना चाहिए. वो वेरी करता है मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड. तो एक जगह का चौका और दूसरी जगह के चौके में फर्क होगा? हाँ सर वैसे नाम चौका होगा बट मतलब लेंथ हो सकता है सर. हाँ जी सर. You are done in electronics. यस सर. So what is the capacity of power in the Rajasthan state? You have any knowledge? सर आई डोंट नो. Okay, we say that supply is more or demand is more. यस सर. How you come to know that supply is more or demand is more at any point of time? Okay sir. Sir, presently I am giving a few example. Like presently tomato rate is very high. So I think demand and supply concept also apply, because I think its price are increases, then demand is also increases. No, in physical system in electricity, Okay. how you come to know that demand and supply is more when you are sitting at power station Okay sir. as an electrical engineer? How can Yes, you sir. differentiate? You know what is frequency? Sorry Frequency of a system? sir, which type of system? Frequency. Yes sir. Sir 50 hertz. Yeah. What does this tell at particular point of time? If it is 49.9 or it is 50.1, Yes sir. what does this tell? Sir, I mean it is the frequency in the what is the form. Like it is the domestic power supply is frequency 50 hertz. Also some contain 60 hertz. But in India we are using in any electronic devices use the frequency 50 hertz. Yeah. So if against 50 hertz you are Yes, sir. getting a frequency of 50.05, Yes, what sir. does it mean? Are we losing electricity or are we having less electricity? What does the system tell? I think it's some error. Some error. Yes, sir. Okay. Okay, when you have solar plant, Yes sir. what does this generate? DC or AC power? Sir DC. DC. Yes sir. Then how you convert it to AC? Sir, it is storage some big batteries, then it convert the AC using battery. What is the fundamental used in your inverter? Okay. Sir, inverter basically convert the any physical या mechanical energy to the electrical. Physical or mechanical? Yes sir. Not electrical.
Sir, also electrical. Okay, Ramratan, in which language you are more comfortable? Hindi or Sir, English? sir, mostly sir in Hindi. हिंदी. Yes, sir. Okay, आपकी फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? Sir, analog network. एनालॉग एंड नेटवर्क Yes, इज योर sir. फेवरेट Yes, सब्जेक्ट. ओके, टेल मी वन थिंग. हम लोग एक स्टेटमेंट देते हैं कि इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता. Yes, sir. ऐसा बोलते हैं ना कि इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता. इसके sir. पीछे का लॉजिक क्या है? Okay. सर ऐसा अपन इंडक्टर में क्या है जो सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करेगा? ओके ओके सर, इसमें जो सर कोयल होती है सर, उसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है सर, वो मतलब सडन जो अपन इसमें इक्वेशन यूज़ करते हैं V = LdI/dt, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सर, वो अपन किसी भी मतलब t = 0 माइनस और जस्ट उससे जस्ट पहले t से वो मतलब अपनी बिहेवियर उसको चेंज नहीं करता है. नहीं, तो जैसे हम लोग कैपेसिटर के लिए यूज़ करें ICdV/dt, बट sir. कैपेसिटर तो अलाउ करता है. वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं कर रहा. उसमें ऐसा क्या है वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता? सर कैपेसिटर में सब इनिशियली वोल्टेज प्रेजेंट रहता है, लाइक स्टोरेज एलिमेंट है वो. नहीं, अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज है तब तो नहीं रहता होगा उसके अंदर. अगर आपने उसको चार्ज किया तभी वोल्टेज रहेगा. यस सर, यस सर. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड Yes, sir. चार्जिंग ऑफ बैटरी? ओके अगर मैं बैटरी को चार्ज करता हूँ तो उसकी वोल्टेज इंक्रीज होगी या नहीं होगी? सर, वो जिस उसकी कैपेसिटी है जिस बैटरी की, लाइक 20 वोल्ट या 50 वोल्ट, तो सर उस वोल्ट तक ही वो मतलब. मतलब जब तक आप बैटरी को चार्ज करते जा रहे हैं उसकी वोल्टेज इंक्रीज होती जा रही है. यस सर. और कैपेसिटर में भी ऐसा होता है. सर उसकी जो वैल्यू है सर, उसकी वैल्यू तक तो सर हाँ जा सकता है सर. लेकिन हम तो बैटरी को बोलते हैं ना कि बैटरी इज ए आइडियल वोल्टेज सोर्स. और वोल्टेज सोर्स का मतलब ये होता है कि उसका वोल्टेज फिक्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड. बैटरी के लिए तो बोला जाता है ना, बैटरी का तो बैटरी इज ए वोल्टेज सोर्स. Yes, sir. वोल्टेज सोर्स मीन्स जिसका वोल्टेज हमेशा फिक्स रहे, चाहे लोड Sir, आप वेरी करें या नहीं सर करें. एक बैटरी होती है इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट है. लाइक एक वोल्टेज सोर्स मतलब सपोज 10 वोल्ट डीसी है, सर वो अपना 10 वोल्ट डीसी पे काम करेगा. सपोज एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है सर, वो जो जिस पे डिपेंड है जिस सोर्स पे, तो उसकी वोल्टेज से वो वेरी करेगा अपनी वोल्टेज को. Okay, tell me what is the difference between minority carrier devices and the majority carrier devices? ओके सर. सर मेजॉरिटी कैरियर. I'm talking about semiconductor यस device. सर, यस सर, यस सर. सर लाइक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो सर उसमें मेजॉरिटी एन टाइप हो जाएंगे. सर पी टाइप है तो उसमें पी टाइप में होल मेजर हो जाएंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी हो जाएगा. नहीं, मैं आपसे उस डिवाइस का नाम पूछ रहा हूँ. मानो जैसे BJT है, वेदर BJT इज ए माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस और द मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस? सर इट इज़ बोथ. बोथ. यस सर. इज द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. Okay. Which is the most powerful theorem of network? सर थेवेनिन थ्योरम, आल्सो सुपरपोजिशन थ्योरम. Why it is most powerful? Because Thevenin theorem application like in measurement devices like Actually, every Wheatstone theorem bridge. has its all limitations. Yes That sir. means Sir it we, is. we cannot apply Thevenin theorem at some places. Yes, sir, We it is- cannot apply superposition theorem everywhere. But there is one theorem which you Sir, can apply tell- everywhere. Tillinghman's theorems. It is applicable linear, non-linear, bilateral, non-unilateral. Tillinghman's theorem is the most powerful theorem. Yes, sir. Yes. Okay. Sir, but my point of view, for application purpose, in Thevenin theorem, use measurement devices like Wheatstone bridge, find out the RTH. No, but the most powerful theorem is a Tillinghman's theorem Okay, because you okay, can sir. apply it everywhere. Okay, Whether sir, it's okay, circuit is a linear one, Okay, sir. non-linear one. Got it, Everywhere you can apply. Okay, got it, sir. Okay. How Alvar got his name Alvar? अलवर का नाम अलवर कैसे पड़ा? सर है ना. Why अलवर is famous for? सर अलवर में सर जो वहाँ का एक फूड है,
लाइक उसको कलाकंद बोलते हैं देसी में, वैसे मिल्क केक होता है, तो इट इज़ मोस्ट फेमस फूड। इसके अलावा अलवर अलवर सर, आल्सो भानगढ़ फोर्ट, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन वर्ल्ड, एंड आल्सो सरिस्का टाइगर रिजर्व। भानगढ़ फोर्ट में किस किस फिल्म की शूटिंग हुई है, कोई बता सकते सर हैं? भानगढ़ में सर करण अर्जुन की। करण अर्जुन की, ओके। किसने बनाया था भानगढ़ फोर्ट? It's a very famous fort, na? Yes, sir, It's yes, called sir. most haunted place in the Asia. I think sir Savai Man Singh या उदय सिंह ऐसे Savai Madho Singh. It was a Savai Madho Singh. Yes sir, I think. Okay. अच्छा, एक बात और बताइए, आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छी जॉब में हैं, साइंटिस्ट भी, यू आर गेटिंग 1,10,000 रुपीज़ पर मंथ, Yes sir. एंड वाई यू वांट टू लीव दैट जॉब? सर जब मैं ग्रेजुएशन में था तो सर मेरा एक ड्रीम था IAS का, तो उस टाइम पे मैंने 2020 में मैंने मेंस दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेंस में नहीं हुआ मेरा। देन उसके बाद मैंने रेलवे विड्रॉ किया, फिर सर मैंने 2 साल ड्रॉप किया, बट फिर अभी मेरे दोस्त IRS में हैं, तो वो बोलते हैं थोड़ा अच्छा है, मतलब But आप। now railway is no longer with Yes, sir, yes, sir. changing services. बट सर वो IRS के बारे में बताते हैं मेरे को कि हम यहाँ पे ऐसी चीज़ों को कमांड करते हैं, तो लाइक पोस्ट पे वहाँ पे, तो मेरे को लगा। But there are a number of department which is offering you the Group B services. यस सर, Every services is not Group A here. So will you join if you selected in the Group B services? सर आई लेटर थिंक ऑन। Okay. What is the difference between Group A officer and the gazetted officer? Or both are same? आई थिंक सर बोथ आर डिफरेंट, ग्रुप ए एंड गजेटेड ऑफिसर। So what is the difference? सर आई डोंट नो एग्जैक्टली। ओके, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? क्रिकेट आपने बता रखा ना, सर क्रिकेट। सर महेंद्र सिंह धोनी सर। महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने कितनी सेंचुरी लगाई है टेस्ट के अंदर? टेस्ट क्रिकेट में कितनी सेंचुरी हैं? सर आई डोंट नो अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर है, आपको नहीं पता कितनी सेंचुरी sir, धोनी ने लगाई हैं? सर मेरे को एजे सर प्लेयर थोड़ा उसका उनका नेचर वाइज थोड़ा अच्छे लगते हैं, थोड़े कूल नेचर है उनका, और जो धोनी को नंबर 7 क्यों बोला जाता है? थाला फॉर ए रीजन। सर आई थिंक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थाला? आपने देखा ना हर जगह पर Yes, जब sir. धोनी Yes, आता है, sir. थाला Yes, sir. फॉर ए रीजन, थाला क्या मतलब है? सर आई डोंट नो सर। ओके, एक आप मैरिड है अनमैरिड हैं अभी? सर अनमैरिड सर। एक बात बताइए, सपोज आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, ठीक है, यस सर। और आप उससे मैरिज करना चाहते हैं, यस सर। बट योर पेरेंट्स डू नॉट अलाउ यू, यस सर। तब आप क्या करेंगे? आप माँ बाप का कहना मानेंगे या उस लड़के का कहना मानेंगे? सर अगर मैं ऐसी कंडीशन में हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करूँगा, उनको जो भी हैं पर्सपेक्टिव है पॉजिटिव नेगेटिव उनको बताने की कोशिश करूँगा, उनको कुछ एग्जांपल दूंगा जो मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा कुछ किया हो। देन अगर मेरी फैमिली एग्री करती है मैं उनको टाइम दूंगा, अगर वो एग्री करती है एक पॉइंट ऑफ व्यू देन आई विल गो। अगर नहीं करती तो? सर अगर आपके मदर फादर किसी भी तरह एग्री नहीं कर रहे हैं, विल यू गो विद द पेरेंट्स और विद दैट? सर आई विल गो विद पेरेंट्स। ओके। रतन, यस सर। आपने EC से बीटेक किया है, यस सर। right? यस सर। आप मुझे बताइए एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन क्या होता है? रेंज पता है आपको? सर एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। जैसे हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं यस सर। तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम रेंज बनाते हैं, राइट? यस सर। यस सर। तो उसके डिफरेंट 0 से N हर्ट्ज तक, उसके बियॉन्ड, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? सर बैंड। हाँ, बैंड की बात कर रहा हूँ। सर L S C बैंड। नहीं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। यस सर। यस सुना है आपने ये यस चीज़? सर। यस सर। क्या रेंज होती है उसकी? सर इन अल्ट्रा इन गीगाहर्ट्ज
कितने से रेंज? सर आई डोंट नो। कोई बात नहीं। आपने यूनिवर्सल गेट पता है कौन सा होता है? सर नैंड एंड नॉर। नैंड एंड नॉर, परफेक्ट। एंड आपने PSK पढ़ा है, फेस की शिफ्टिंग कम्युनिकेशन? सॉरी। फेस की शिफ्टिंग। यस सर, यस व्हाट सर। इज 8 PSK? 8 PSK. Sir, it is the combination of ASK and P. Sir, I किस don't. चीज़ के लिए यूज़ होता है ये? सर इसमें सर जो प्रोबेबिलिटी एरर होती है सर वो मिनिमम होती है, ओके। और जो कुछ ड्रॉबैक होते हैं जो अपने ASK, PSK, FS के होते हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए कौन यूज़ से करते हैं। ड्रॉबैक्स? सर लाइक अपन इफ़ n को इंक्रीज करते हैं तो उनकी बैंडविड्थ इंक्रीज होती है, ओके तो उसके लिए यूज करते हैं, और इसमें प्रोबेबिलिटी एरर भी कम होता है। ओके। अच्छा आप मुझे बताइए, इसका locus height- एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या फ़र्क होता है? सर AM basically used for broadcasting and FM use also AM used for short distance communications and FM for long and wireless communications, and it is in frequency in giga for जैसे हम लोग अगर टीवी वॉच करते हैं, राइट, yes sir तो टीवी पे जो ऑडियो आ रहा है Yes, वो sir. किस मॉड्यूलेशन से आता है? ऑडियो एंड वीडियो okay sir दोनों सेम मॉड्यूलेशन से आते हैं या डिफरेंट मॉड्यूलेशन से आते हैं? then उसको superimpose करते हैं? VSB Vestigial Yes, sideline sir. modulation, perfect. अच्छा आप जैसे अभी साइंटिस्ट बी में Yes, जॉब sir. कर रहे हैं, Yes, sir. तो STQC में आपने कभी कैलिब्रेशन हैंडल किया है? आपके यहाँ पे बहुत सारे sir. इलेक्ट्रॉनिक Yes, sir. मेजरिंग Yes, sir. डिवाइसेस होंगे, Yes, तो sir. उसका कैलिब्रेशन हम लोग कैसे करवाते हैं और Sir, उसका शेड्यूल क्या होता है? सर प्रेजेंटली सर मैं टेस्टिंग लैब में हूँ, बट मेरे को थोड़ा आइडिया है कैलिब्रेशन के बारे में, Right. क्योंकि उनके पास हाई प्रिसीजन और एक्यूरेसी के उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। Okay. लाइक वो USA से भी कैलिब्रेट करवाते हैं, जो NP इंडियन नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है यहाँ से वो Right. कैलिब्रेट करवाते हैं। Right. तो सर उनके पास डिफरेंट, सपोज मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल दिया 1 वोल्ट का, सर उनके पास डिफरेंट 1 वोल्ट के प्रिसीजन वाइज उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, Right. तो वो उनसे मेजरमेंट करते हैं। फिर सपोज 1 के क्रॉस पॉइंट जो वोल्टेज आ रही है 1.001, आई थिंक वो डेसिमल से 5 डिजिट के बाद वो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, देन उसके बाद उनका एवरेज लेके फिर वो अपना। तो ये जो हम लोग कैलिब्रेशन आउटसोर्स करते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? लाइक कितने महीने के बाद हमें फिर से कैलिब्रेट कराना पड़ता है डिवाइसेस को? सर इलेक्ट्रिकल मेजर डिवाइस होते हैं उनका 1 ईयर से, सर मैकेनिकल होता है उनका 2 ईयर्स। 2 years, परफेक्ट। आपने अपने इसमें लिखा हुआ है आपको एक्सप्लोर करना पसंद है नई प्लेसेस। यस सर, यस सर। तो ऐसे आप कोई अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताइए कि आप किसी अननोन जगह पे गए हो। सर अभी मैं रिसेंटली सर अभी मतलब 15 डेज बैक आई एम सर गोइंग टू लेह लद्दाख। ओके, वेरी नाइस। सर सर वहाँ पे, सॉरी सर, आप दिल्ली से जाएंगे? सर मैं बाई फ्लाइट गया था। बाय फ्लाइट गए थे? सर। वेरी नाइस। ओके, तो वहाँ पे सबसे चैलेंजिंग थिंग आपने वहाँ पे क्या देखी? सर जो वहाँ जियोपॉलिटिकल वहाँ का Yes, sir. सिनेरियो सेट करता है। सर जो खारदुंगला पास और जो उमलिंगला पास है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल बाईपास है, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 19,000 फीट। सर वहाँ पे एल्टीट्यूड हाई की वजह से होने से ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है वहाँ पे। अगर आपको ऑलरेडी कुछ बीमारी है या आप मतलब फिट भी हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी वहाँ पे ऑक्सीजन लेने तो में। वहाँ पे हमको एक बात बताइए, जैसे हम लोग नॉर्मली राइस कुकर में बनाते हैं, यस सर। तो वहाँ के लोग कैसे इसको करते हैं? क्योंकि टेम्परेचर मतलब एल्टीट्यूड बढ़ने से इसमें क्या चेंज आता है? प्रेशर में क्या चेंज आता है? सर वहाँ पे प्रेशर कम होने की वजह से सर वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है, ओके, तो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगा वहाँ पे, मतलब कि इन सर्दी में एवरीथिंग इज फ्रीज। ओके। एंड आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको स्कॉलरशिप मिली थी। यस सर। कौन सी स्कॉलरशिप थी? सर जो ST की सर नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सर नेशनल, सर वो एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप टॉप 3 ST में आप आते हो अपनी ब्रांच में, तो सर मेरा 2nd नंबर पे मेरा आप था। सेकंड पे थे? यस सर। ओके। एंड वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड, आपने कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, यस सर। राइट? तो कौन से कल्चरल इवेंट में आप क्या किया था आपने? सर कॉलेज में सर इवेंट होते हैं, तो सर जो वहाँ पे मतलब सर पार्टिसिपेट करना लोगों को, इनिशियल में जब हम फर्स्ट ईयर में तो पार्टिसिपेट किया, देन 3rd ईयर में सर हमको वो एज ए लीडरशिप बनने का वहाँ पे मौका देते हैं। तो सर जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज करना होता है इवेंट को। तो आप कल्चरल सेक्रेटरी थे? नहीं सर,
कन्वीनर थे? सर मतलब मैं एज ए पार्टनर थे सर, जो क्या सेक्रेटरी। रोल था आपका वहाँ पे? सर मतलब सब इवेंट है सर, उसको पार्टिसिपेट, उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना। सर मेरे पास वहाँ पे आईटी का वो था, मेरे पास डिपार्टमेंट था, जो आईटी में जो पोस्ट करना होता है उसको हैंडल करना होता है, या कॉलेज में इवेंट के ड्यूरेशन कुछ ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ पोस्ट कर देते हैं रिगार्डिंग कॉलेज के रिगार्डिंग या इवेंट के रिगार्डिंग, तो उनको हैंडल करना लाइक सर साइबर से रिलेटेड सर। तो आपको सिर्फ आपको फिर ये पता होगा, इन्फ्लुएंसर आजकल टर्म काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। यस सर। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? इन्फ्लुएंसर यस सर। अगर मार्केटिंग करता है तो इस दोनों टर्म को कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। सर जो सोशल मीडिया पे जो कुछ चीज़ों को प्रमोट करते हैं, राइट। लाइक कुछ भी एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी, तो आई थिंक इट्स ठीक है। Okay. ओके सर। So Ramratan, your interview is over. We'll Okay, call you sir. back. ओके सर। Okay. Kindly wait outside. We'll call you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। कमिंग सर। Okay, wait. थैंक यू सर। So Ramratan ji, यस सर। when you came first time also, यस सर। see first you have to see who all are on the board. ओके You have सर। to wish the chairman ओके सर। and then take permission and sit. ओके सर। If the chairman is a lady, ओके। then first wish the lady. ओके Even सर। if chairman is not the lady, then also first wish the lady, then wish the rest of the board. 4 मेंबर है तो 4 बार बोलने की जरूरत नहीं है, ओके पर सर। एक बार तो बोलना चाहिए। यस सर। आप एक बार बोलना चूक गए थे, ओके तो थोड़ा ध्यान रखना। ओके ठीक सर। है? दूसरा, जब आप बैठते हो तो आप पीठ पीछे लगा के आराम से बैठो, ओके सर। हाथ साइड में रख लो। ओके सर। ठीक है, लेकिन यू यूज योर हैंड्स, फिक्स करने की जरूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन ठीक है, आपके पास अगर वॉच हो तो आप वॉच पहने। ओके सर। सर नॉर्मल वॉच। कॉलर अपना ठीक कर लेना। ओके सर। ठीक है, ऐसे टाई आपकी कंधे झुके हुए क्यों, दोनों ओके सर। आगे जाके क्यों बैठे होते हैं? आराम से ऐसे ये तुम्हारा सही पोस्चर है। ओके सर। आपकी टाई का जो नॉट है इसको टाइट करना पड़ेगा। ओके सर। दिस ठीक ओके है, गले का बटन बंद करना पड़ेगा। ओके सर। ओके तो ध्यान कर लेना। ओके ठीक है? आई विल सर। और टाई भी बदल लेना। Okay. टाई इज नॉट अप्रोप्रिएट। ये टाई का Okay, sir. मतलब ये क्यों चूज़ किया है? सर मेरे पास एक और है बट मैंने हाँ, ग्रीन कलर। ये वाली ठीक नहीं है। ओके सर। ठीक है, सर ग्रीन। मतलब थोड़ा सा कलरफुल हो तो बेटर है। ओके ब्लू। ओके कलरफुल के अलावा इसका जो डिजाइन है ये थोड़ा सा ओके सर। ओके डिस्टर्बिंग है। ओके सर। इसको ओके ध्यान रखना। ओके सर। ठीक है? अपना हेयर स्टाइल वगैरह भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके सर। सीम्स कि अभी आपने उतना तैयारी उस कब है इंटरव्यू आपका? सर मेरा 4 नवंबर 4 नवंबर। 4 नवंबर को है। तो समय है आपके पास, Yes, sir. थोड़ा देख करके ठीक से करा दें, ठीक ओके सर। देखिए, आफ्टर डिस्कशन विद द पैनल, है? One second. ओके सर। सर, दूसरी बात, आपको जो मार्क्स देने हैं, पूरे बोर्ड ने देने हैं। ओके सर। तो जब मैंने सवाल पूछा आप सिर्फ मेरी तरफ देख रहे थे, ओके तो सर। बाकी लोग फिर क्या करेंगे, वो स्विच ऑफ हो जाएंगे ओके सर। और आपका आखिरी सेंटेंस सुन करके उस पर आपको नंबर देंगे। ओके सर। सो I will do. दैट इज़ नॉट द वे। तो आप 60% जिसने सवाल पूछा उसकी तरफ देखो, ओके सर। 40% औरों की तरफ देखो। ओके सर। ठीक है? आप नाश्ता करके आए थे आज? नो सर। नाश्ता नहीं किया था? अच्छा, तो अगली बार इंटरव्यू में जब भी जाओ नाश्ता करके जाना, ओके सर। क्योंकि आप बड़े गंभीर लग रहे हो। इतने गंभीर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। स्माइल, थोड़ी एनर्जी, थोड़ी एंथुसियाज्म आनी चाहिए। ओके सर। ओके। ठीक है? जो भी बोर्ड में बैठे होंगे सब 60 से ऊपर होंगे, ओके। तो आप अगर उनसे एनर्जी मांगने बैठ जाओगे तो फिर वो एनर्जी देंगे, नंबर नहीं देंगे। ओके सर। ओके आई विल। इसका थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, फिर आपने STQC में ज्वाइन किया हुआ है। Yes, sir. 1,10,000 रुपये तनख्वाह आपकी। यस सर। यहाँ पर आपको तनख्वाह कम मिलेगी बाय द वे। यस सर। योर फर्स्ट सैलरी विल नॉट बी मोर देन 70,000 रुपीज़। यस सर। यस सर। तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ओके सर। कि आप छोड़ करके क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ओके सर। और साइंटिस्ट बी हो, बट इट इज़ नॉट ए ग्रुप बी पोस्ट, यस सर। इट इज़ अ ग्रुप ए पोस्ट, Yes, इजंट इट? यस सर। उसका ध्यान रखना।
और दूसरा आपको STQC क्या करता है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को 4 ही महीने हुए, 5 ही महीने हुए वहाँ गए। ओके स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ये बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है। यस सर, यस सर। और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में कॉल ड्रॉप होती है, बाकी चीज़ें हैं, तो कोई ना कोई आपको इसमें पकड़ लेगा। ओके सर, ओके सर, तो एटलीस्ट इसकी बेसिक इंजीनियरिंग आपको सारी पढ़ लेनी चाहिए। ओके सर, ठीक है ना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है के अलावा भी ओके सर, फंडामेंटल्स क्या हैं ओके वो सर। आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? पावर सेक्टर में थोड़ा सा देख लीजिएगा ओके सर, ओके सर, क्वालिटी ऑफ पावर क्या है, जैसे फ्रिक्वेंसी वगैरह चीज़ों के बारे में ओके सर। जानकारी रख लीजिए। और टेक्निकल क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ा सा ठीक है सर, रिक्वायरमेंट है तो उसको देख लीजिए। ओके सर। रामरत्न, जैसे तुम रूरल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, Yes, sir. तुम्हारी मानो इंग्लिश अच्छी Yes, नहीं sir. है, Yes, sir. और कोई भी इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है, यस सर, तो आप उनसे बोल सकते हैं कैन आई रिप्लाई इन हिंदी। ओके और सर, अगर वो बोलते हैं, उनको बोलना पड़ेगा, 100% में बोलेंगे यस यू कैन। ओके उसके सर, बाद आप हिंदी में रिप्लाई कर सकते हैं, बट ये नहीं हो कि लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएँ। ये सबसे वर्स्ट चीज़ होती है। Okay, आपको sir. पूरा आता है लेकिन आप लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इससे ख़राब बात दूसरी नहीं हो सकती। ओके सर, दूसरी ये कि आपकी ना बेसिक चीज़ों में जो आप, जैसे आप जहाँ पर रह रहे हैं, सर ने पूछा कि आपका Yes, sir. गांव का नाम Yes, ये sir. क्यों Yes, पड़ा, sir. Yes, कुछ ना sir. कुछ एक स्टोरी होती है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. जैसे नहीं भी होती तो आप बना सकते हैं। गांव के नाम की स्टोरी किसी को नहीं पता ये नाम ऐसे क्यों पड़ा। यस सर, यस सर, आप बोलोगे कि वहाँ पर एक बहुत अच्छा आदमी रहता था, उसके पापा का नाम हाँ, ये yes, था sir. और उसके नाम से बढ़ गया। यस सर, कोई नहीं बोल, मतलब ये भी मैं बता रहा हूँ कम करने की जरूरत नहीं है। आप ये कह सकते हो मैंने अपने दादाजी से पूछा था, Yes, sir. उन्होंने कोई बता नहीं दिया। ऐसा बताया। हाँ सर, मेरे गांव के नियर बाई ऐसे हैं गांव जो अपने दादा के वैसे नाम से हैं वैसे। अच्छा, अलवर का नाम अलवर क्यों पड़ा, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी मिल Yes, sir. जाती है। Yes, sir. अगर आप सर्च Yes, sir. करोगे Yes, ना, I तो will. कम से कम I will. अलवर का नाम अलवर क्यों पड़ा ये तो आपको पता यस होना सर, ही यस चाहिए। सर, यस सर, अलवर को मैंने पूछा अलवर किसके लिए फेमस है, आप खाली कलाकंद के लिए फेमस बता रहे थे, ठीक है। सर। फिर उसके बाद आपको भानगढ़ का याद देखो आया। सीधी सी बात है, ये आपका जो डाफ है यस सर, ये आपसे आधा घंटा पहले पहुंच जाएगा अंदर। यस सर, यस सर, इसमें जो जो शब्द लिखे हैं उन सबका तुम्हें पता होना चाहिए। Yes, sir. एक्चुअली ये बताओ, ये तुमने इसको डेव बनने से पहले किसी से राय ली थी नहीं ली थी? सर लिया था सर, एक दोस्त, एक फ्रेंड से। अरे हम लोगों ने इसमें कितना इसके ऊपर गाइड किया। जैसे तुमने जो अपनी ये लिखी हुई है हॉबीज, क्रिकेट जो हॉबी लिखी हुई है, बहुत खतरनाक हॉबी है ये, पता है। खतरनाक का मतलब है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बेकार हॉबी कोई दूसरी नहीं है, क्योंकि इसमें इतने क्वेश्चन बनते हैं। Yes, sir, आप yes, sir. जितना जानते हैं ना उससे ज़्यादा इंटरव्यू जानता है इसके बारे में। यस सर, यस सर, मतलब इसको आप रिप्लाई देना, हर क्वेश्चन का कर देना, इसमें सबसे मुश्किल टास्क होता है, मैं बताऊँ क्रिकेट यस के सर, लिए। यस सर, आई नो सर। और हमने जब लोगों को बताया था, स्पेशली मना करते हैं म्यूजिक, खाली एकदम म्यूजिक लिख देना और सिर्फ क्रिकेट लिख देना, ये बहुत खतरनाक जाता है। इसके ऊपर इतने क्वेश्चन बनते हैं, आप रिप्लाई दे ही नहीं सकते। बट आपने इसके ऊपर लिख दिया और आपको फिर पता भी नहीं था इसके बारे में, आप नहीं पढ़ के आए क्या चीज़ है क्या नहीं है। दूसरी चीज़, जब मैंने आपसे पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपने 2 सब्जेक्ट के नाम लिए। यस सर, आपने नेटवर्क नाम लिया, नेटवर्क जनरली नाम नहीं लेते हैं लोग, लेकिन Okay, sir. आपको लगा इजी सब्जेक्ट है तो मैं नाम लेता हूँ। ओके सर, बट आप उसका क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जबकि नेटवर्क में थ्योरी बहुत ज़्यादा होती ही नहीं है। यस सर, यस सर, और एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट आपको नहीं पता कि मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस और माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस क्या होती है, तो बहुत बेसिक चीज़ थी। ओके सर, ये तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, आप ये सबसे इम्पोर्टेंट कि आप ये वाला जो सर बोले थे, ये जॉब छोड़ के इसमें क्यों आना चाह रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा Okay, तैयार sir, करना I है। will. अगर नहीं I पता हो will तो try. किसी से पूछ लेना क्या कैसे बताना है, ओके सर, कि इसके ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, ये मान के चलो। यस सर, यस सर, आई जो विल। आदमी जॉब कर रहा होता है ना, एक चीज़ है कि जब कोई भी इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछ रहा है, यस सर, वो आपको कहाँ पर लाके आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं, यस सर, आप उस रिप्लाई को कहाँ पर लाके छोड़ रहे हैं ना, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली उस जगह से ही आता है। तो आप अपना पूरा का पूरा इंटरव्यू तैयार कर सकते हैं अपने घर के ऊपर कि मेरे को इस जगह पर छोड़ना है, वो उधर से क्वेश्चन पूछेगा, इसका ये रिप्लाई करूँगा। ओके सर, यहाँ आपको कितने भी मार्क्स मिलना है उससे अपने आप को जज करने की ज़रूरत नहीं है, यस सर, ठीक है। ये खाली ये कि आप में जो वीकनेस है, जो Yes, sir, कमी yes, है, sir. आप उसको अपने आप को इम्प्रूव करना है और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। Yes, sir. जो छोटी छोटी चीज़ें आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके बाकी सर, आपकी ऊपर जो टेक्निकल नॉलेज आपकी बढ़िया है, बट थोड़ा आप सब्जेक्ट 2 नहीं बता के आप 1 बता सकते हैं, 1 सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिए।
सर मैं कम्युनिकेशन थोड़ा पढ़ के वो बता सकता हूँ। हाँ, तो आप ये बता दो, आप कोई पूछता है मानो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कम्युनिकेशन बता दो, डिजिटल इसकी सर्किट तैयारी आल्सो, कर लो। डिजिटल सर्किट। हाँ, इस तरह की मतलब तो Okay, बस ये सब चीज़ें आप करोगे, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा इन डेप्थ में जाना पड़ेगा उसमें उस और subject एक में। बड़ी सिंपल सी बात है, जो चीज़ तुम्हें नहीं आती सिंपली बोलो कि सर मुझे ये, मैं इस बारे में और सीखूंगा और पता करूंगा, बस कह Okay, के sir. बाहर निकल जाओ। ओके सर, अगला सवाल आने दो। ओके मतलब जो उसका सर बोल रहे हैं, जिसका रिप्लाई आपको नहीं पता ना, उसके बारे में गलत आंसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके Okay, बाद फिर इंटरव्यूअर उसी के बारे में आपसे पूछता रहेगा, पूरा का पूरा Okay, sir, इंटरव्यू आपका okay. बेकार हो जाएगा। ओके सर। रतन, जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा था, EHF के बारे में पूछा था, तो आपका sir. कम्युनिकेशन अभी आपने बोला फेवरेट टॉपिक है, तो आपको उसकी बैंडविड्थ वगैरह पता होनी Sir, चाहिए, हाँ, बिकॉज okay, I will एक go, वो sir. पॉइंट है। Yes, sir. टेक्निकली आपको चीज़ें पता है, Yes, sir. बट चीज़ों को पता होना और चीज़ों का ऐसा पता होना कि आप सामने वाले को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ एज अ लेमैन, यस सर, यस दोनों डिफरेंट स्किल सेट होता है, राइट? अभी Okay, तक आपने लिख के मेंस में आंसर्स Yes, sir. दिए हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको बस ये प्रैक्टिस करना है कि आप इमेजिन करा करो कि सामने पैनल बैठा हुआ है, अगर मैं कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ तो उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा सामने पैनलिस्ट को, राइट? Okay, तो आपकी नॉलेज लेवल इज एट पार, पर Okay, थोड़ा sir. सा इन डेप्थ आपको घुसना sir. पड़ेगा। Okay, sir. एंड जैसे आपने हॉबीज आपने लिखी हुई है Yes, कि रनिंग एंड ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया, थोड़ा Yes, sir. वेग है, ओके सर। इसको थोड़ा और प्रेसाइज बनाइए। अब जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा कि वॉकिंग और रनिंग में क्या फर्क है, यस सर, यस सर। तो वॉकिंग और रनिंग में बेसिकली क्या है, पैर का जो मूवमेंट होता है Okay, पूरा sir. का पूरा टो वॉकिंग में होना चाहिए, तभी उसको वॉकिंग बोलेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके तो सर। इसमें टाइम वाला आपका आंसर वो सही ओके नहीं सर, था। ओके सर। एंड इसी में Knee जैसे bend नहीं होता। हाँ, नी बेंड नहीं होता। एंड Okay. जैसे सर ने क्रिकेट बोला, आपने धोनी बोला, आपको Yes, sir. फेवरेट Yes, sir. स्पोर्ट्स Yes, sir. पर्सन है, Yes, sir. बट आपको ये नहीं पता उसके नंबर ऑफ हंड्रेड्स कितने हैं, Yes, sir. नंबर 7 कैसे पड़ा। ओके सर। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ऊपर ऊपर मतलब सुपरफिशियल Yes, sir. Yes, पर्पस sir. फील हो रहा Okay, sir. I है। will. एंड आपने अगर कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, यस सर। तो यू मस्ट हैव बीन इन सम मार्केटिंग टीम, ऑर्गेनाइजिंग टीम, ओके सर। हॉस्पिटैलिटी टीम, एंड नंबर ऑफ टीम्स होती हैं। Yes, sir, yes, तो sir. आप कुछ रोल डेजिग्नेट करो जिससे Okay, ये sir. समझ में है कि आपके अंदर ये स्किल सेट है कि कल के दिन, कल मान लो आप एज एन ऑफिसर बन गए, Yes, sir. आपको 100 लोगों को केटर करना है, Yes, कुछ sir. फंक्शन है, तो आप लीड कर सकते हो, यस राइट? सर। ओके ओके। तो एंड आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका इंट्रो। ओके सर। इंट्रो में आप अपने जॉब के बारे में भी थोड़ा बताइए, एंड आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, लाइक आपने कुछ BTP किया होगा, ओके सर। जो आपके स्ट्रेंथ है वो बताइए, ताकि इंटरव्यूअर जो है उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे। ओके सर। Right? ओके। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग के साइड से थे। ओके सर। ओके सर। आई विश So ऑल presently you will get about 100-110 marks, but you have the potential कि और Okay, sir. ज़्यादा ले सको। ओके सर। ओके सर, आई विल। ठीक है? एक बार STQC के बारे में देखिएगा, Okay, sir. आपका बेसिक पढ़ाई वगैरह भी जो की है आपने, तो फंडामेंटल्स यू शुड नो। ओके सर। ओके। So all the best. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।